नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। विषय हिंदी। आज हम 12वीं कक्षा हिंदी का प्रयोजनमूलक शब्दावली सीखेंगे। शब्दावली विश्वकोश, थिसोरस, परिचय और उपयोग એટલે કે જેને આપણે ડિક્શનરી કહીએ, ઇંગ્લિશમાં આપણે ડિક્શનરી કહીએ, ગુજરાતીમાં જોડણી કોષ। એ જ આ છે જે તમને શબ્દનો અર્થ ખબર પડતી ન હોય અને આપણે એ શોધવા માટે જેનો ઉપયોગ કરીએ ને એ જ આ વસ્તુ છે। હવે આપણે સમજીશું। શબ્દકોશ, અન્ય વર્તની અને શબ્દકોશ। વર્તનીનો અર્થ શું થાય કે એક શબ્દ તમે ગુજરાતીમાં શબ્દ બોલો, इंग्लिश में આપણે स्पेलिंग बोलिए, જ્યારે हिंदी में શું કહેવાય वर्तनी। एक बड़ी सूची या ऐसा ग्रंथ जिसमें शब्दों की वर्तनी, उनकी व्युक्ति, व्याकरण, निर्देश, अर्थ, परिभाषा, प्रयोग और पदार्थ आदि का सन्निवेश हो। शब्दकोश एक भाषीय हो सकते हैं, द्विभाषिक हो सकते हैं या बहुभाषिक हो सकते हैं। अधिकतर शब्दकोशों में शब्दों के उच्चारण के लिए भी व्यवस्था होती है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय ध्वन्यात्मक लिपि में, देवनागरी में या ऑडियो संचिका के रूप में। कुछ शब्दकोश में चित्रों का सहारा भी लिया जाता है। अलग अलग कार्य क्षेत्रों के लिए अलग अलग शब्दकोश हो सकते हैं, जैसे विज्ञान शब्दकोश, चिकित्सा शब्दकोश, विधिक એટલે કે કાનૂની શબ્દકોશ, ગણિત કા શબ્દકોશ આદि। હવે શું કહે છે કે શબ્દકોશ કે તમને જે કોઈ શબ્દનો અર્થ સમજાતો ન હોય અથવા તો એના વિશે એનો બીજો અર્થ શું છે એ જાણવું હોય તો શબ્દકોશનો ઉપયોગ થાય છે। એવા અલગ અલગ પ્રકારના શબ્દકોશ બનાવેલા હોય। એવા શબ્દકોશમાં એક ભાષાનો શબ્દકોશ હોય અને બે ભાષાનો પણ શબ્દકોશ હોય અથવા ઘણી બધી ભાષાઓના શબ્દકોશ હોય છે। જેવી રીતે ભાષા કેમ ને ગુજરાતી, હિન્દી, ઇંગ્લિશ, સંસ્કૃત, પંજાબી એ બધી ભાષા છે એ ભાષા પ્રમાણે બધા શબ્દકોશ હોય છે। મોટે ભાગે શબ્દકોશનો ઉપયોગ ઉચ્ચારણ કેમ કરાય એના માટે આપેલું હોય છે। હવે એની અંદર અલગ અલગ જે કાર્યક્ષેત્રની અંદર હોય એવા શબ્દકોશ આવેલા હોય છે। જેવી રીતે વિજ્ઞાનના કોઈ શબ્દ કે વિજ્ઞાન વિશેની જાણકારી હોય એનો શબ્દકોશ અલગ હોય, ચિકિત્સાનો શબ્દકોશ અલગ હોય, કાનૂની કાયદા કાનૂનીનો શબ્દકોશ અલગ હોય, ગણિત તો ગણિતનો શબ્દકોશ અલગ હોય, ગુજરાતી તો ગુજરાતીના શબ્દકોશ અલગ હોય। એટલે દરેકના શબ્દકોશ અલગ હોય છે। सभ्यता और संस्कृति के उदय से ही मानव जान गया था कि भाव के सही संप्रेषण के लिए सही अभिव्यक्ति आवश्यक है। सही अभिव्यक्ति के लिए सही शब्द का चयन आवश्यक है। सही शब्द के चयन के लिए शब्दों के संकलन आवश्यक है। शब्दों और भाषा के मानकीकरण की आवश्यकता समझकर आरंभिक लिपियों के उदय से बहुत पहले ही आदमी ने शब्दों का लेखा जोखा रखना शुरू कर दिया था। इसके लिए उसने कोश बनाना शुरू किया। कोश में शब्दों को इकट्ठा किया जाता है। હવે શું કહે છે કે શબ્દકોશ આગળ કે સભ્યતા અને સંસ્કૃતિ પ્રમાણે અલગ અલગ એવા શબ્દકોશ બનાવેલા હોય છે। એમાં ભાવ પણ વાળા પણ અલગ અલગ શબ્દકોશ હોય છે, એટલે ભાવવાચક સંજ્ઞાવાળા કે એવા કોઈ પણ એવા શબ્દકોશ હોય એ બનાવવામાં આવેલા હોય છે। એના જે લિપિ છે, એની જે લખવાની જે અક્ષર હોય એ ભાષા હિન્દીમાં કેમ લખીએ, આપણે ગુજરાતીમાં કેમ લખીએ, જે બધા લખવાની અલગ અલગ જે અક્ષર હોય એને કહેવાય લિપિ। તો એમાં એ બધું સાથે કરી અને એના શબ્દો સાથે કરી અને એક શબ્દકોશ બનાવવામાં આવેલો છે। શબ્દકોશ હવે આપણે શબ્दकोश ने જોશું कि हमारे परिचित भाषाओं के कोशों में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के परिशीलन में उपयुक्त समस्त प्रवर्धक का उत्कृष्ट निदर्शन देखा जा सकता है। उसमें शब्दों के सही उच्चारण का संकेत
चिन्हों से विरुद्ध और परिनिष्ठित बोध भी कराया है। यूरोप के उन्नत और समृद्ध देशों की प्रायः सभी भाषाओं में विकसित स्तर की कोश विद्या के आधार पर उत्कृष्ट विशाल प्रामाणिक संपन्न कोशों का निर्माण हो चुका है और उन देशों में कोश निर्माण के लिए ऐसे स्थायी संस्थान प्रतिस्थापित किए जा चुके हैं जिनमें अबाध गति से सर्वदा कार्य चलता रहता है। लब्ध प्रतिष्ठा और बड़े बड़े विद्वानों का सहयोग तो उन संस्थाओं को मिलता ही है, जागरूक जनता भी सहयोग देती है। अंग्रेजी डिक्शनरी तथा अन्य भाषाओं के में निर्मित कोशकारों के रचना विधान मूलक वैशिष्ट का अध्ययन करने से अद्यतन कोशों में निम्न निर्दिष्ट बातों का अनुयोग आवश्यक लगता है। હવે કહે છે કે શબ્દકોશ બનાવવા માટે જે એક છે ઓક્સફોર્ડ યુનિવર્સિટી, એની બધા તમે ઇંગ્લિશની અંદર ઓક્સફોર્ડ ડિક્શનરી ઉપયોગ કરતા હશો, તો કહે છે કે એને બનાવવા માટે ઘણા એવા વિદ્વાનોએ એને તૈયાર કર્યું છે અને યુરોપ ને બીજા સમૃદ્ધ દેશોમાં પણ એ વિકસિત થયેલી છે। તો કહે છે કે આ જે શબ્દકોશ બનાવવા માટે બધા જે જાગૃત લોકો હોય છે એ મદદ કરે છે, સહયોગ આપે છે। હવે એ ડિક્શનરી બનાવવા માટે કે શબ્દકોશ બનાવવા માટે એના માટેના જે નિયમો હોય છે એ હવે નીચે છે, આપણે જોઈશું। उच्चारण सूचक संकेत चिन्हों के माध्यम से शब्दों के स्वरों व्यंजनों का पूर्णतः शुद्ध और परिनिष्ठित उच्चारण स्वरूप बताना, अस्वराधात बलाघात का निर्देश करते हुए यथासंभव उच्चार्य अंश के अक्षर की विबद्धता और अबद्धता का परिचय देना। ख व्याकरण संबंध उपयोगी और आवश्यक निर्देश देना कि व्याकरण संबंध हो कि कया शू व्याकरण ने आधारे हो, इंग्लिश में एक्टिव पेसिव हो, गुजराती में जे छंद हो अथवा हिंदी में जे समास के संधि हो ए आधारे। शब्दों का इतिहास संबंध वैज्ञानिक व्युत्पत्ति प्रदर्शन निर्देश करना कि जे शब्दनो तमे उपयोग करो छो एनो इतिहास कि कया समयनो छे शुं छे एने आधारे। परिवार संबंध अथवा परिवार मुक्त निकट या दूर के शब्दों के साथ शब्दरूप और अर्थरूप का तुलनात्मक पक्ष उपस्थित करना। शब्दों के विभिन्न और पृथुकृत नाना अर्थों को अधिक न्यून प्रयोग और क्रमानुसार सूचित करना। अप्रयुक्त शब्दों का अथवा शब्द प्रयोगों की विषो सूचना देना। एना पछीनो शब्दों के पर्याय बताना। पर्याय में तो समझाणु ने समझाय छे ने, जो पहला में कहे एनो शब्दनो प्रयोग केम कराय। अप्रयुक्त એટલે શબ્દ હોય એનો પ્રયોગ એની સૂચિ બતાવવાની, એનો સમાન શબ્દ બતાવવાનો, પછી સંગત અર્થો કે સમાન ઉદાહરણ દેના કે એના જેવો એને લગતો હોય ઉદાહરણ એનું આપવાનું। જેમ કે લાલ, તો લાલને લગતો કયો હોય છે રંગ, રાતો, એવી રીતે। चित्रों, रेखाचित्रों, मानचित्रों आदि के द्वारा अर्थ को अधिक स्पष्ट करना કે અમુક એવા જે હોય ડિક્શનરીની અંદર ચિત્રો આપીને કે એવા રેખાચિત્ર, માનચિત્ર એટલે કે નકશા દ્વારા એવા બધું હોય એનાથી એ અર્થ સ્પષ્ટ તમને સમજાવે। જેમ આપણે ચિત્રો દોરીએ એના પરથી ખબર પડી જાય કે આ ચિત્ર આ કહેવા માંગે છે। તમને ઇંગ્લિશમાં આવે છે કે ચિત્રોને આધારે 5-7 वाक्य लखो। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का न्यूनतम और बृहत्तम संस्करण आधुनिक कोश विद्या की प्रायः सभी विशेषताओं से संपन्न है। नागरिक प्रचारिणी सभा के हिंदी शब्द सागर के अतिरिक्त हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाश्यमान मानक शब्दकोश एक विस्तृत आवास है। हिंदी कोश कला के लब्ध प्रतिष्ठित संपादक रामचंद्र वर्मा के शू कहे छे कि आ रामचंद्र वर्मा नामना व्यक्तिए पण आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अंदर ज्या शब्दकोश बनावेलो छे एने पण एमां सहाय आपी, सहाय એટલે કે મદદ કરી છે। સમજાય છે ને વિદ્યાર્થી મિત્રો? हाँ, હવે આગળ જોશું આપણે। इसी प्रशंसनीय कार्य का उपजीव्य भी मुख्यतः शब्द सागर ही है। उसका मूल क्लेवर तात्विक रूप में शब्द सागर से अधिकांश परिफलित है। हिंदी के अन्य कोशों में भी अधिकांश सामग्री इसी कोश से ली गई है। थोड़े बहुत मुख्यतः संस्कृत कोशों से
और यदा कदा अन्यत्र से शब्दों और अर्थों को आवश्यक अनावश्यक रूप में ढूंढ दिया है। ज्ञान मंडल के विरुद्ध हिंदी शब्दकोश में पेटे वाली प्रणाली शुरू की गई है, परंतु वह पद्धति संस्कृत के कोशों में जिनका निर्माण पश्चिमी विद्वान के प्रयास से आरंभ हुआ था, सैकड़ों वर्षों पूर्व से प्रचलित हो गई थी, पर आज भी नव्य तथा आधुनिक भारतीय भाषाओं में कोश उच्च स्तर तक नहीं पहुंच पाए। जहां तक ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी अथवा रूसी, अमेरिकन, जर्मन, इताली, फ्रांसीसी आदि भाषाओं के उत्कृष्ट और अत्यंत विकसित कोश पहुंच चुके हैं। હવે શું કહે છે કે આપણી અહીંની જે શબ્દકોશ છે એ જે ઓક્સફોર્ડ યુનિવર્સિટી જેટલી પ્રસિદ્ધ થઈ નથી। ઓક્સફોર્ડ યુનિવર્સિટીને એટલે કે ઓક્સફોર્ડ જે ડિક્શનરી છે એનો ઉપયોગ દુનિયામાં થાય છે, જ્યારે આપણા જે છે સંસ્કૃત, હિન્દી એની અંદર એટલો બધો એનો વિકસિત થઈ નથી। कोश रचना के ऊपर वर्णित विधा को हम साधारणतः सामान्य भाषा शब्दकोश कहते हैं। इस प्रकार शब्दकोश एक भाषी, द्विभाषी, त्रिभाषी और बहुभाषी भी होते हैं। बहुभाषी शब्दकोशों में तुलनात्मक शब्दकोश की कोश भी यूरोपीय भाषाओं में ऐतिहासिक और तुलनात्मक भाषा विज्ञान की प्रौढ़ उपलब्धियों से प्रमाणीकृत रूप में निर्मित हो चुके हैं। इनमें मुख्य रूप से भाषा वैज्ञानिक अनुशीलन और शोध के परिणाम स्वरूप उपलब्ध सामग्री का नियोजन किया गया है। ऐसे तुलनात्मक कोश भी आज बन चुके हैं जिनमें प्राचीन भाषाओं की तुलना मिलती है। ऐसे भी कोश प्रकाशित है जिनमें एक से अधिक मूल परिवार की अनेक भाषाओं के शब्दों की तुलनात्मक परिशीलन किया गया है। કહેવામાં આવે છે કે આ જે શબ્દકોશ છે, જેમ પહેલાં આપણે આગળ શીખ્યા કે સમજ્યા કે આ જે શબ્દકોશ છે એ એક નહીં, બે નહીં, ત્રણ નહીં, એવી અનેક ઘણી બધી ભાષાઓમાં શબ્દકોશ બનાવેલા હોય છે અને એની અંદર જે પણ કાંઈ શબ્દો હોય એનો સમાનાર્થી, વિરોધી કે તુલનાત્મક એવા બધા શબ્દો આપેલા હોય છે અને એ પ્રમાણિત થયેલા હોય છે। એની એ જે શબ્દકોશ બનાવવામાં આવે છે। શબ્દકોશ કે નાના રૂપ, એક શબ્દકોશનું નાનું સ્વરૂપ। હવે આગળ જોશું शब्दकोशों के और भी नाना रूप आज विकसित हो चुके हैं और हो रहे हैं। वैज्ञानिक और शास्त्रीय विषयों के सामूहिक और तत्संबंधी विषय के अनुसार शब्दकोश भी आज सभी समृद्ध भाषाओं में बनते जा रहे हैं। शास्त्र और विज्ञान शाखाओं के पारिभाषिक शब्दों भी निर्मित हो चुके हैं और हो रहे हैं। શું કહે છે કે આ જે શબ્દકોશ છે એ જે મોટી મોટી ડિક્શનરી હોય છે એના કરતાં પણ હવે એ જે નાના નાના જે નાની નાની એનું જે સ્વરૂપ હોય એ તમારા ખિસ્સામાં રહી જાય એવી નાની ડિક્શનરી પણ બનાવે છે। અને એની અંદર દાખલા તરીકે તમે કોલેજમાં ભણતા હો તો કોલેજ પ્રમાણે ડિક્શનરીનો ઉપયોગ હોય, પછી નાના ધોરણમાં હો તો એ પ્રમાણે એ ડિક્શનરી એટલે કે શબ્દકોશ બનાવે છે। ધોરણને આધાર રાખીને બનાવે કે ભાઈ, અને ઘણી વખત તો જોજો તમે જોઈ હશે કે સાવ નાની ડિક્શનરીઓ અને અક્ષર પણ સાવ ઝીણા ઝીણા હોય, હા, કે તમારા ખિસ્સામાં રહી જાય। की रचना एक भाषा में भी होती है और अनेक भाषाओं में भी होती है। इन सब હવે આગળ જોશું આપણે। कुछ में केवल पर्याय शब्द रहते हैं और कुछ में व्याख्या अथवा परिभाषाएं भी दी जाती है। विज्ञान और तकनीकी का प्राविधिक विषयों से संबंध नाना पारिभाषिक शब्दकोशों में व्याख्यात्मक परिभाषाओं तथा कभी कभी अन्य साधनों की सहायता से भी बिल्कुल सही अर्थ का बोध कराया जाता है। दर्शन, महाविज्ञान, मनोविज्ञान, समाज विज्ञान और समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि समस्त आधुनिक विद्याओं के कोश विश्व की विविध संपन्न भाषाओं में विशेषज्ञों की सहायता से बनाए जा रहे हैं और इस प्रकृति के सैकड़ों हजारों कोश भी बने चुके हैं। शब्दार्थ कोश संबंधी प्रकृति के अतिरिक्त इनमें ज्ञान कोशात्मक तत्वों की विस्तृत या लघु व्याख्याएं भी सम्मिलित रहती है। प्राचीन शास्त्रों, दर्शन आदि के विशिष्ट एवं पारिभाषिक शब्दों के कोश भी बने हैं।
और बनाए जा रहे हैं। अनेक अतिरिक्त एक एक ग्रंथ के शब्दार्थ कोश और एक एक लेखक के साहित्य की शब्दावली भी यूरोप, अमेरिका और भारत आदि में संकलित એટલે કે भेगी हो रही है। संकलित न થાય સાથે ભેગું। इनमें उच्च कोटि के कोशकारों ने ग्रंथ संदर्भ के संस्कारात्मक संकेत भी दिए हैं। अकारादि वर्णानुसारी अनुक्रमणिकात्मक उन शब्द सूचियों का जिनके अर्थ नहीं दिए जाते हैं पर संदर्भ संकेत रहता है, यहाँ उल्लेख आवश्यक नहीं है। यूरोप और इंग्लैंड में ऐसी शब्द सूचियाँ अनेक बनी। शेक्सपियर द्वारा प्रयुक्त शब्दों की ऐसी अनुक्रमणिका परम प्रसिद्ध है। वैदिक शब्दों की ऋतु संहिता के में प्रयुक्त पदों की ऐसी शब्द सूचियों के अनेक संकलन पहले ही बन चुके हैं। व्याकरण महाभाष्य की भी एक ऐसी शब्दानुक्रमणिका प्रकाशित है, परंतु इनमें अर्थ न होने के कारण यहाँ उनका विवेचन नहीं किया जा रहा है। હવે કહેવાનું શું, આ પેરેગ્રાફની અંદર શું કહેવા માંગે છે કે તમે જે કોઈ શબ્દ હોય એનો શબ્દનો અર્થ શું છે, પછી શું કહે છે કે એની જે અમુક શબ્દકોશની અંદર એટલે કે જે નાના સ્વરૂપની શબ્દકોશ બનેલો હોય છે એની અંદર તમને જ્ઞાન મળે એવા શબ્દો આપેલા હોય, પછી નાની એવી વ્યાખ્યાઓ હોય, એને પારિભાષિક શબ્દો એટલે કે અલગ પ્રકારના એના જે શબ્દોના અર્થ હોય વિશિષ્ટ એ આપેલા હોય છે। એવી રીતે એ ઘણા બધા શબ્દો એની અંદર આપેલા હોય છે અને એ તમને એની અંદર ઝડપથી મળી જાય એટલા માટે એ વર્ણને આધારે પણ આપેલા હોય છે અને એની અનુક્રમણિકા જો અનુક્રમણિકાને આધારે દાખલા કે અ ઉપરથી શબ્દ ખપે છે તો અ ઉપરથી તમે એ અમાં જુઓ તો મળી જાય, આ ઉપરથી ખપ્યો તો આમાં મળી જાય। એવી રીતે એ અનુક્રમણિકા આપેલી હોય છે, એની શબ્દસૂચિ બનાવેલી હોય છે। શેક્સપિયરના જે એટલે કે ઇંગ્લિશમાં જ હતા શેક્સપિયર, આપણે હિન્દીમાં નહીં, તો એને આધારે એની અનુક્રમ શબ્દો કોઈ એસી અનુક્રમણિકા પરમ પ્રસિદ્ધ એટલે કે એની જે અનુક્રમણિકા બનાવેલી હોય એ પરમ પ્રસિદ્ધ છે। પછી કહે છે વૈદિક, આપણા જે વૈદિક હોય એની અંદર જે ઋતુ સંહિતા નામનું હોય છે, ઋતુ સંહિતા તમે સાંભળ્યું હોય તો ખ્યાલ છે, હા ઋતુ સંહિતા આપણે 10મા ધોરણમાં જોયું હતું ને, મહાકવિ કાલિદાસે ઋતુ સંહિતા નામનું નાટક લખ્યું હતું। હા એને આધારે એક અમુક શબ્દ સૂચિઓ સંકલન કરીને પહેલેથી જ બનાવેલી છે, પણ એનું શું કહેવામાં આવે છે કે એને બધું કરેલું છે છતાંય પણ એમના અમુક અર્થ ન હોવાને કારણે એનું વિવેચન હજી સુધી થયું નથી। જ્ઞાનકોશ એટલે કે જેની અંદરથી આપણે જ્ઞાન મળે ને આપણી ભાષામાં કે તમારી ભાષામાં શું કહેવાય, JK जनरल नॉलेज। कोशों की एक दूसरी विद्या ज्ञान कोश भी विकसित हुई है। इसके बृहत्तम उत्कृष्ट रूप की इनसाइक्लोपीडिया कहा गया है। सांभळ्यो शब्द इनसाइक्लोपीडिया कहा गया है। हिंदी में इसके लिए विश्वकोश शब्द प्रयुक्त शब्द और गृहीत हो गया है कि हिंदी में एना माटे आपणे शुं शब्द वापरीए छीए, विश्वकोश। यह शब्द बांग्ला विश्वकोशकार ने कदाचित सर्वप्रथम बंगाल के ज्ञानकोश के लिए प्रयुक्त किया। उसका एक हिंदी संस्करण हिंदी विश्वकोश के नाम से नए सिरे से प्रकाशित हुआ। हिंदी में वह शब्द प्रयुक्त होने लगा। कैसे कि ये शब्द बंगालना कोई कोश बनावनार व्यक्तिए वापर्यो हशे तो बंगाली भाषावाळाए, तो अत्यारे ए आपणे हिंदीमां ई शब्द वपराय छे। यद्यपि हिंदी के प्रथम किशोरोपयोगी ज्ञानकोश को भी श्री नारायण चतुर्वेदी तथा पंडित कृष्ण वल्लभ द्विवेदी द्वारा विश्व भारती अभिधान दिया गया, तो भी ज्ञानकोश, ज्ञानदीपिका, विश्वदर्शन, विश्वविद्यालय भंडार आदि संज्ञाओं का प्रयोग भी ज्ञानकोश के लिए हुआ है। कैसे कि जे हिंदी माटे जेने बनाव्યું एना जे नाम आपेला छे के अने एना जे ज्ञानकोशनी जे ચોપડી કે પુસ્તક હોય છે એના જે નામ છે
ज्ञान दीपिका, विश्व दर्शन। स्वयं सरकार भी बाल शिक्षाओपयोगी ज्ञानात्मक कोष ग्रंथ का प्रकाशन ज्ञान सरोवर नाम से कर रही है, परंतु इंसाइक्लोपीडिया के अनुवाद रूप में विश्वकोश शब्द ही प्रचलित हो गया है। उड़िया के एक विश्वकोश का नाम शब्दार्थनुवाद के अनुसार ज्ञान मंडल रखा भी गया। ऐसा लगता है कि बृहद परिवेश के व्यापक ज्ञान का पारिभाषिक और विशिष्ट शब्दों के माध्यम से ज्ञान देने वाले ग्रंथ का इंसाइक्लोपीडिया या विश्वकोश अभिधान निर्धारित हुआ और अपेक्षाकृत लघुतर कोशों को ज्ञानकोश आदि विभिन्न नाम दिए गए। अंग्रेजी आदि भाषाओं में बुक ऑफ नॉलेज, डिक्शनरी ऑफ जनरल नॉलेज आदि शीर्षकों के अंतर्गत नाना प्रकार के छोटे बड़े विश्वकोश अथवा ज्ञानकोश बने हैं और आज भी निरंतर प्रकाशित एवं विकसित होते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इंसाइक्लोपीडिया आज रिलीजन एंड एथिक्स आदि विषय विशेष से संबंध विश्वकोशों की संख्या भी बहुत ही बड़ी है। अंग्रेजी आदि भाषाओं में बुक ऑफ नॉलेज, डिक्शनरी आज जनरल नॉलेज आदि शीर्षकों के अंतर्गत नाना प्रकार के छोटे बड़े विश्वकोश अथवा ज्ञानकोश से बने हैं और आज भी निरंतर प्रकाशित एवं विकसित होते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स आदि विषय विशेष से संबंध विश्वकोशों की संख्या भी बहुत ही बड़ी है। अंग्रेजी भाषा के माध्यम से निर्मित अनेक सामान्य विश्वकोश और विशेष विश्वकोश भी उपलब्ध है। હવે શું કહે છે કે જે લોકોએ પોતપોતાના આધારે જાકે ઉડિયાવાળાએ એને અલગ નામ આપ્યું, પછી અંગ્રેજીવાળાએ અલગ નામ આપ્યું, જનરલ નોલેજ, એવી રીતે બધાએ પોતપોતાના જ્ઞાનની અપેક્ષા પ્રમાણે એનું નામ આપી અને વિશ્વકોશ બહાર પાડ્યો છે। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिका ना अंग्रेजी के ऐसे विश्वकोश हैं। अंग्रेजी के सामान्य विश्वकोशों द्वारा इनकी प्रमाणिकता और सामान्यतः सर्व स्वीकृत है। निरंतर इसके संशोधित, संवर्धित तथा परिष्कृत संस्करण निकलते रहते हैं। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के 2 परिनिष्ठित ग्रंथ भी है जो प्रकाशित होते रहते हैं और जो नूतन संस्करण की सामग्री के रूप में सातत्य भाव से संकलित होते रहते हैं। इंग्लैंड में इंसाइक्लोपीडिया के पहले ही ज्ञानात्मक कोशों के नाना रूप बनने लगे हैं। આમાં આ પેરેગ્રાફમાં એવી જાણકારી આપવામાં આવે છે કે અમેરિકાની અંદર એવા ઘણા નાના નાના કોષો બનતા રહે છે। જ્ઞાનકોશો કે નાના પ્રકાર કે હવે એની જે તમારે કાંઈ જ્ઞાન શીખવું મેળવવું હોય એના માટેની નાની નાની પુસ્તિકા। ज्ञानकोशों के भी इतने अधिक प्रकार और पद्धतियाँ हैं जिनकी चर्चा का यहाँ अवसर नहीं। એટલે કહે છે કે જ્ઞાન તો અસીમ છે, તમે જે મેળવો એ જ્ઞાન જ કહેવાય। નવું કાંઈ પણ આપણે શીખીએ એ જ્ઞાન મેળવ્યું। એટલે કહે છે કે એની તો ચર્ચા કરી શકાય નહીં, એટલી બધી અનહદ છે। ચરિતકોશ, કથાકોશ, હવે અમુક અહીં નામ આપેલા છે। ચરિતકોશ, કથાકોશ, ઇતિહાસકોશ, ઐતિહાસિક કાલકોશ, જીવન ચરિતકોશ, पुराख्यान कोश, पौराणिक ज्ञात पुरुष कोश आदि आदि प्रकार के विविध नामात्मक ज्ञान कोशों की बहुत सी विधाएँ विकसित और प्रचलित हो चुकी है। કેટલી બધી જે કોશ છે એ પ્રચલિત हो चुकी है। જેને કાંઈ ઇતિહાસ વિશે જાણકારી ખપતી હોય કે જીવન ચરિત્ર કોઈ મહાન પુરુષોના જાણવા હોય, કથા માટે હોય, એ આ વાંચે તો એને સમજાઈ જાય, જાણકારી મળે। यहाँ प्रसंग ज्ञानकोश का संकेतात्मक निर्देश मात्र कर दिया जा रहा है। हम इस प्रसंग को यहीं समाप्त करते हैं और शब्दकोश से संबंध प्रकृति विषय की चर्चा की ओर लौट जाते हैं। फरीथी આપણે शब्दकोश तरफ જઈશું। विश्वकोश अंग्रेजी भाषा में बुक ऑफ नॉलेज, डिक्शनरी ऑफ जनरल नॉलेज आदि नामों से अनेक प्रकार के छोटे बड़े विश्वकोश छपे हैं। यहाँ तक कि अब इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिस्ट्री आदि प्रकार के विश्वकोश का बहुत ज़्यादा प्रकाशन हो रहा है, जिनमें किसी विशेष क्षेत्र के शब्दों की विस्तृत व्याख्या, परिभाषा और आदि सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं संकलित की गई। अंग्रेजी भाषा में इस प्रकार के अनेक सामान्य और विशेष
विश्वकोश आजकल उपलब्ध है। हिंदी में भी अंग्रेजी की तर्ज पर अनेक रूपों एवं आकारों में विश्वकोश का प्रकाशन हुआ है। એટલે કહે છે કે ઇંગ્લિશમાં તમને જે જોઈએ એ બધા આપણને એ જોડણી કોષ કયો, વિશ્વકોશ કયો કે ડિક્શનરી કયો એ ઇંગ્લિશમાં મળી રહે છે। એવી જ રીતે હવે હિન્દીમાં પણ તમને હિન્દી માટે જોતા હોય એના જે શબ્દ માટે તો એમાં પણ હવે મળી રહે છે। इन्हें इतिहास कोश, चरित्र कोश, कथा कोश, पुराख्यान कोश आदि शीर्षक के अंतर्गत संकलित किया गया है। એટલે કે એને આ નામ આપી અને એને ભેગું કર્યું છે, એકઠું કર્યું છે। સંકલિત કરવું એટલે ભેગું કરવું, इंग्लिशમાં તમે टुगेदर કહો ने એ રીતે। जनसंचार माध्यमों के तीव्र विकास ने यह जहाँ कोशों के प्रचलित स्वरूप में बुनियादी परिवर्तन ला दिया है, वहीं इन क्षेत्रों में प्रयुक्त नई शब्दावली को केंद्रित करके कई विश्वकोश भी प्रकाशित किए गए हैं। जैसे अशोक गुप्त द्वारा निर्मित हिंदी पत्रकारिता संदर्भ कोश, डॉक्टर राम प्रकाश और डॉक्टर सुधींद्र कुमार के संयुक्त संपादन में संकलित पत्रकारिता संदर्भ कोश, विष्णु पंकज द्वारा संपादित साक्षात्कार कोश, प्रताप नारायण टंडन का बृहद हिंदी पत्रकारिता कोश आदि, प्रोफेसर रमेश जैन द्वारा संपादित एवं नेशनल पब्लिशिंग हाउस में प्रकाशित जनसंचार विश्वकोश ऐसा ही कोश है जिसे हिंदी का पहला जनसंचार कोश माना जाता है। कि आ बधा जे लेखको होय छे एणे पोते विश्वकोश बहार पाड्या छे अने कहे छे कि रमेश जैन द्वारा जे कह्युं छे रमेश जैन द्वारा संपादित एवं नेशनल पब्लिशिंग हाउस में प्रकाशित जनसंचार विश्वकोश ऐसा ही कोश है जिसे हिंदी का, सांभळजो फरीदी, जिसे हिंदी का पहला जनसंचार कोश माना जाता है। इसमें जनसंचार क्षेत्र से जुड़ी विविध विधाओं के पारिभाषिक शब्दों का शोधपूर्ण एवं तथ्यात्मक विवेचन, એટલે કે તમને એની અંદર જે કાંઈ તથ્ય હોય, જે કાંઈ અર્થ તમને ખપતો હોય એ મળી રહે છે। તથ્યોને આધારે कि तथ्यों ने आधार किया गया है। इस कोश में शब्दों को निम्नलिखित प्रकार से संकलित किया गया है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, एनसाइक्लोपीडिया एनकार्टा एवं एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना आदि ऐसे बहुचर्चित विश्वकोश है जिनका कई खंडों में प्रकाशन हुआ है। इनकी विशद लोकप्रियता एवं ज्ञानवर्धक उपयोगिता से बेहद प्रभावित होकर सबसे पहले भारतीय कोशकार डॉक्टर नगेंद्रनाथ, सांभळजो, सबसे पहले भारतीय कोशकार डॉक्टर नगेंद्रनाथ बसु ने कई वर्षों के अथक प्रयास से 25 खंडों में विभाजित हिंदी विश्वकोश का निर्माण एवं प्रकाशन किया। तदनंतर डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, भगवत शरण उपाध्याय आदि विद्वानों के संयुक्त परिश्रम से 12 खंडों में विभाजित एक अन्य हिंदी विश्वकोश का प्रकाशन भी हुआ। એટલે કહે છે કે જે લોકોએ પ્રકાશન પાડ્યું એ બધા જે લોકોએ જે વિશ્વકોશ બનાવ્યા એ બારે પાડ્યા છે એના નામ અહીં આપણે આપેલા છે। હવે આગળ आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि शब्दकोश और विश्वकोश में क्या अंतर, એટલે તમારા મનમાં એમ થતું હશે કે શબ્દકોશ એટલે શું અને વિશ્વકોશ એટલે શું। તો હવે સાંભળજો। दरअसल सामान्य शब्दकोश के केंद्र में शब्द होते हैं किंतु विश्वकोश के केंद्र में विषय का पूर्ण विवेचन निहित होता है। એટલે કે જે શબ્દકોશમાં શું હોય કે શબ્દને આધારે જ એનો અર્થ આપવામાં આવે છે, પણ વિશ્વકોશમાં શું છે કે જે વિષય આપેલો હોય એને આધારે આખું સમજાવવામાં આવે છે। જેમ કે તમે કોઈ એવો શબ્દ હોય, દાખલા તરીકે તમે એક શબ્દ લ્યો કે શું આપણે સહેલો શબ્દ લઈએ રાત, તો રાતને બીજો પર્યાયવાચી શબ્દ શું આવે નિશા, પછી એનો વિરોધી દિન। હવે એવી રીતે બીજો કોઈ એવો વિષય હોય કે
કે કાંઈ પણ એવું દાખલા કે નિશા એના વિશે, તો એનો આખો એ વિષયનું પૂર્ણ વિવેચન કરવામાં આવે કે આ આમ છે, આ તેમ છે, એવી રીતે એને કે સંપૂર્ણ માહિતી આમાં આપવામાં આવે, ટૂંકમાં નહીં. बराबर. हाँ, आगे. यही कारण है कि विश्व कोश में संसार के सभी मुख्य विषयों पर विस्तृत लेख, उनके ऐतिहासिक विवरण, प्रयोग, गुण, दोष आदि का विशद विवेचन प्रस्तुत किया जाता है. कि એની અંદર શું હોય છે સાંભળજો. એનો લેખ વધારે લખાયેલો, જેમ કેમ તમે ગાય વિશે નિમત લખો તો ગાયને 4 પગ હોય, ગાયની 2 આંખ હોય, ગાય લાલ સફેદ કાબરચિત્રી હોય, એવી રીતે તમે જેમ લખો ને એવી રીતે એનું આખું ઐતિહાસિક વર્ણન કરે. એની અંદર ગુણ શું છે, એમાં દોષ શું છે, એનો પ્રયોગ કેમ કરાય, એ બધું વિશ્વકોશની અંદર આપેલું હોય. इसके अतिरिक्त उस विषय से जुड़े दृष्टांत, उद्धरण, पृष्ठभूमि तथा विचित्र आदि भी प्रस्तुत किए जाते हैं ताकि विषय को पूर्णतः स्पष्ट किया जा सके. इस प्रकार विश्वकोश में किसी विषय, वस्तु आदि की प्रकृति, निर्माण प्रक्रिया, प्रयोग, विधि, शक्ति, स्वरूप आदि का विस्तारपूर्वक वर्णन किया जाता है. जबकि शब्दकोश में शब्दों के उच्चारण, वर्तनी, व्युत्पत्ति, व्याकरणिक रूप, वर्ण परिवर्तन, रूप भेद, अर्थ, व्याख्या, पर्याय, प्रयोग आदि को स्पष्ट किया जाता है. કે શબ્દમાં, જબકી શબ્દકોશમાં શું સાંભળજો, એનું ઉચ્ચારણ, વર્તની એટલે સાચો છે કે ખોટો છે, એની ઉત્પત્તિ કેમ થઈ છે, એનું વ્યાકરણ સ્વરૂપ કેવું છે, સ્ત્રીલિંગ છે, પુલ્લિંગ છે, કેમ છે, એનું વર્ણ પરિવર્તન, પછી એનું રૂપ, એનો ભેદ, કે અર્થમ કે દિન અને દિનમાં આપણે ભેદ હોય છે ને, અર્થ હોય છે એનો, એક દિન એટલે ગરીબ ને એક દિન એટલે દિવસ, એની વ્યાખ્યા, એનો સમાનાર્થી શબ્દ, એનો પ્રયોગ, એ બધું શબ્દકોશમાં આપેલું હોય છે. परिचय और उपयोग. शब्दों के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी जैसे हिज्जे, अर्थ, उच्चारण, उत्पत्ति आदि के लिए प्रधान सूत्र और साधन शब्दकोश ही होते हैं. કે એના અર્થ, એનો શું કહેવાય, એની ભૂલ, એને શું આપેલું છે, એનું એ બધી માહિતી એમાં આપેલી હોય છે शब्दकोश में. विश्वकोश में शब्दकोश इस अर्थ में भिन्न होता है कि विश्वकोश में किसी वस्तु के विषय में जानकारी दी होती है. आधुनिक बृहद शब्दकोश की यह भी एक विशेषता मानी जाती है कि वे शब्द के बारे में तो सूचित करते ही है, अक्सर विश्वकोशों के समान संबंधित वस्तु के विषय में भी बताते हैं. इस प्रकार एक अच्छा शब्दकोश 2 प्रकार के संदर्भ ग्रंथों यानी विश्वकोश और शब्दकोश का काम देता है. विद्यार्थी अवस्था से लेकर अंतकाल तक शब्दकोश ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो कभी भी अनुपयोगी नहीं होता. કે છે વિદ્યાર્થીની અવસ્થાથી લઈ અને આપણા જીવનના અંત સુધી શબ્દકોશ એવો ગ્રંથ હોય છે કે એ ક્યારે અનુપયોગી હોતો નથી. એટલે કે એનો હર હંમેશ ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. શબ્દકોશ વગર ચાલતું જ નથી. इसलिए इस पाश्चात्य देशों में शब्दकोशों के विश्वकोश रूप पर तरह तरह के परिशिष्ट और चित्र आदि देकर लिखार पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा है. કે એના અર્થ આપે છે, એનો એક પાછળ હોય અનુકર્મકાર જેવું, એમાં પરિશિષ્ટ એ આપેલા હોય, ચિત્ર આપેલા હોય, એના પર વધારે ધ્યાન આપે, કે એને વધારે નિખારે, કે છે કે લોકો એને આકર્ષિત કરે નવા નવા શબ્દોથી સારી રીતે લેખન કાર્ય કરીને, એ લોકો એને વાંચે, સમझे. उनके नाम में भी विश्वकोश या विश्वकोश संबंधित शब्द जैसे एनसाइक्लोपीडिक डिक्शनरी जोड़े जाने लगे हैं. यही कारण है कि विदेशों में प्रकाशित शब्दकोश शब्दों के अर्थ जानने के अलावा अन्य प्रकार की सूचनाओं के लिए भी उपयोगी बन जाते हैं. जिन शब्दकोशों में शब्दों का स्पष्ट करने और उनकी प्राचीनता का प्रमाण देने के लिए उद्धरण भी दिए जाते हैं, उनका उपयोग किसी उद्धरण का सूत्र मालूम करने के लिए भी किया जा सकता है. कुछ शब्दकोशों में प्रसिद्ध विद्वानों, लेखकों, राजनीतिज्ञों आदि के उदाहरण भी शब्दों के अर्थ के साथ दिए रहते हैं. इस प्रकार किसी स्वतंत्र उद्धरण कोश के अभाव के इस प्रकार के शब्दकोश बहुत उपयोगी बन जाते हैं. કહે છે કે કાંઈ તમને એવું તકલીફ હોય, કાંઈ કોઈ વસ્તુનો અભાવ હોય, કોઈ લેખક વિદ્વાન વિશે તમારે એવા કંઈ જાણકારી ખપતી હોય તો એના તમે પુસ્તકો વાંચો કરો તો તમને મળી જાય.
अगर शब्दकोश तैयार करने और उसके मुद्रण में प्रकाशक और लेखक से जिस सामग्री की अपेक्षा की जाती है वह भारत में प्रकाशित किसी भी भाषा के शब्दकोश में शायद ही देखने मिलती है। कैसे કે જે વિદેશમાં જે હોય છે પ્રકાશકોમાં જે ખૂબી કે જે હોય એ આપણામાં જરાક એની અપેક્ષા એ થોડી ઓછી જોવા મળે છે કે ત્યાંના લોકોનું કામ કેવું હોય છે, થોડુંક ચીવટવાળું હોય છે। कभी कभी प्रकाशक योग्य व्यक्तियों को थोड़ा सा पारितोषिक देकर शब्दों को तैयार कर लेते हैं और फिर बिना परीक्षण कराए उसे ज्यों का त्यों छाप देते हैं। એટલે કે છે ક્યારેક કંઈક પ્રકાશન હોય એટલે કે છાપવાવાળા વ્યક્તિઓ હોય એ શું કરે, અમુક વ્યક્તિઓ પાસે બનાવી લે સાચા ખોટા, પછી એને ચેકિંગ ન કરાવે, એનું પરીક્ષણ ન કરાવે અને એમને એમ છાપીને બહાર પાડી દે અને આપણે બધા એને ઉપયોગ કરીએ। ખોટો કંઈક સાચા શબ્દનો ખોટો જવાબ આપેલો તો પણ આપણે એને માનવું પડે, આપણે એમ થાય કે આ જોડણી કોષમાં આપેલો છે એટલે સાચું હશે। એટલે કે જ્યારે પણ આપણે જોડણી કોષ કે શબ્દકોશ લઈએ તો કોઈ જે સારો લેખક હોય એનું લેવાનો, બીજાનું નહીં। यह भी देखा गया है कि प्रकाशक नए संस्करण के नाम पर पुराना संस्करण ही बिना किसी संशोधन या परिवर्तन के छाप देते हैं। कि प्रकाशन नाम पर एम जो जूनू छापी दे, इस कारण पिछले संस्करण में रह गए भूलों को संशोधन तथा कथित नए संस्करण में नहीं हो पाता और न ही उनमें भाषा प्रचलित हो चुके नए शब्दों का समावेश हो पाता। કે જૂનું છાપી દે તો જે જૂનામાં જે ભૂલ થયેલી હોય એને પાછી નવામાં ભૂલ થયેલી આવે છે અને એમાં કોઈ નવા શબ્દો આપણે શીખવા મળતા નથી। किसी भी शब्दकोश की उपयोगिता जानने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि उसमें प्रयुक्त भाषा को, હવે કહે છે કે જ્યારે પણ આપણે કોઈ પણ શબ્દકોશની ઉપયોગિતા વિશે આપણે જાણવું હોય તો આપણે એની શું કરવાનું, એની ઉપયોગિતા વિશે જોવાનું કે એમાં પ્રયુક્ત શબ્દ છે એ શેના આપેલા છે। परखा जाए कुछ ऐसे ही शब्दों पर प्रकाशित हुए जिनका उद्देश्य किसी एक काल या युग के शब्दों के अर्थ देना है। इसीलिए वर्तमान काल की भाषा के शब्दों के लिए मध्यकालीन या वैदिक कालीन की भाषा का कोश उपयोगी नहीं होगा। इसलिए इसी प्रकार कोई व्यक्ति अगर प्राचीन ऐतिहासिक काल के शब्दों के अर्थ जानने के लिए अधुनातन भाषा का शब्दकोश देखे तो यह उसकी भूल होगी और अपेक्षित सूचना नहीं मिल सकेगी। એટલે કે છે કે તમારે કાંઈ જૂના વિશે જાણવું હોય, મધ્યકાલીન કે વૈદિક કાલીનની ભાષા વિશે, તો તમારે એ ઇતિહાસ કાળના સમયનો ઐતિહાસિક સમયનો તમારે શબ્દકોશ લેવો જોઈએ। અત્યારે આધુનિક શબ્દકોશનો ઉપયોગ કરો તો તમને એ શબ્દોના અર્થ કે એના વિશેની જાણકારી મળે નહીં। कुछ प्रकाशक अपने शब्दकोश के प्रचार के लिए शब्द संख्या की घोषणा भी कर देते हैं, पर यह बहुत भ्रामक है। इससे यह पता नहीं चलता कि शब्दों की संख्या किस प्रकार आंकी गई है। कि घણા લોકો શું કરે, પોતા પ્રકાશકો કે શબ્દકોશની સંખ્યા જાહેર કરી દે પણ એ બહુ કેવી હોય છે, ભ્રામક હોય છે, આપણે ભ્રમ ફેલાવેલી હોય છે, પણ એના ઉપરથી કાંઈ આંકી શકાય નહીં કે આ શબ્દકોશ સારો છે। घोषित या प्रचारित शब्द संख्या में केवल मुख्य शब्दों को शामिल किया गया है या मुख्य शब्दों के अन्य रूपों को भी गिना गया है। मसलन एक आदर्श शब्दकोश में पिछलगा, पिछलगी और पिछलगू समझो आ शब्दो आपेलो छे। हवे शब्दकोशमां केम एक शब्द को होय एना केटला शब्दो आपेला होय, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग ने नपुंसकलिंग ये शब्द होय ए रीते आमां बतावेलुं छे। पिछलगा पुल्लिंग, पिछलगी स्त्रीलिंग, पिछलगू ये नपुंसकलिंग को अन्य एक शब्द गिना जाएगा। पर कुछ प्रकाशक पिच जैसे कुछ अन्य शब्दों से निकले रूपों को भी शब्दों की संख्या में शामिल करके शब्द संख्या भ्रमात्मक रूप में बढ़ाकर प्रचारित करते हैं। शब्दों के संबंध में यह भी देखना चाहिए कि कोश में किस प्रकार के शब्द दिए गए हैं, उसमें बोली और उपभाषा में के शब्दों के साथ ही प्रचलित और वैज्ञानिक शब्द भी शामिल किए गए हैं या नहीं। આ કહે છે કે આ પીચ એક શબ્દ કહેવાય ને ઘણા લોકો શું કરે કે આ 4000 શબ્દની ગણતરી કરી લે કે ભાઈ એવડા બધા શબ્દો આપેલા છે જુઓ,
અને એમાં વિજ્ઞાનને લગતી પણ શબ્દની માહિતી છે કે નહીં એ પણ જોવું જરૂરી છે। હવે આપણે આગળ જોઈશું। यह भी देखना चाहिए कि कोश में हर शब्द का विवेचन निरूपण 21 प्रकार किया गया है। मसलन शब्द के हिज्जे शुद्ध है कि नहीं, भाषा केवी छे ना, शब्द शुद्ध है कि नहीं, हिज्जे लेना शब्द एनु जे लखेलू होय रसबाई दीर्घाई आपणे करीए ने एने कहेवाय रसबाई अहींया दीर्घाई करो छो तमे घणी बधी भूलो करो छो तो एने कहेवाय जे एवी भूलो करवानी नहीं। एटले के जे शुद्ध भाषा में लखी है कि अशुद्ध भाषा में चयन में किन सिद्धांतों को अपनाया गया है, शब्द के बहुवचन क्रिया रूप कृदंत आदि भी दिए गए हैं या नहीं, शब्दों का उच्चारण दिया है या नहीं, उच्चारण देने के लिए जो नियम अपनाया गया है वह यथातथ्य और स्पष्ट है या नहीं, आ बधुं जोवुं जरूरी छे। शब्द का इतिहास दिया गया है या नहीं, किसी शब्द के अर्थ में समय समय पर जो परिवर्तन हुए हैं या होते रहते हैं उनका उल्लेख है या नहीं, शब्द की परिभाषा स्पष्ट सही और उपयुक्त है या नहीं, कठिन शब्दों का अर्थ और परिभाषा स्पष्ट करने के लिए उदाहरण और उद्धरण भी दिए गए हैं या नहीं, उदाहरण किस रूप में दिए गए हैं और उदाहरणों का सही संदर्भ दिया है कि नहीं, क्या संदर्भ कार्यक्रम में रखे गए हैं और हर एक के साथ समय दिया गया है ताकि शब्द विशेष का इतिहास भी मालूम हो सके, क्या शब्द के साथ उसका परिचय जैसे स्तरीय अप्रचलित बोलचाल संबंधी आदि दिया गया है, शब्द के पर्याय और विलोम भी दिए गए हैं या नहीं, शब्द के साथ विश्वकोश के समान सूची दी गई है या नहीं। हवे तमारे आ जोड़णी कोश के शब्दकोश लेवो होय तो आटली बधी जाणकारी राखवी पड़े अने पछी तमारे लेवानो। हवे आगळ यूरोपीय भाषाओं के अच्छे शब्दकोशों में आमतौर पर शब्दों की परिभाषा समानार्थी शब्दों के अलावा कुछ और महत्वपूर्ण और उपयोगी सूचनाएं भी दी रहती है। इस प्रकार के बड़े शब्दकोशों में कुछ सूचनाएं विश्वकोश की शैली में होती है, कुछ शब्दकोशों के उदाहरण भी खूब दिए रहते हैं। उदाहरण એટલે उदाहरण जिनका उपयोग विदेशी उदाहरण कोश के पूरक के रूप में किया जा सकता है। कुछ शब्दकोशों में अप्रचलित शब्द और स्थानीय प्रयोगों में आने वाले शब्द अलग से दिए रहते हैं, इसलिए स्थानिक इतिहास आचार विचार लोक व्यवहार आदि की थोड़ी बहुत जानकारी के लिए भी उपयोगी होते हैं। हिंदी का विश्वकोश इंटरनेट पर हिंदी का विश्वकोश भी उपलब्ध है। ये विश्वकोश हिंदी की सबसे पुरानी संस्थाओं में से एक नागरिक प्राचार्य सभा ने तैयार किया था। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा ने इसे इंटरनेट पर स्थापित किया है। जो तमने हवे हिंदी विश्वकोश जोईए तो नेटनो उपयोग करी अने एमांथी जे तमने माहिती जोईए ए मळी शके। कई संस्था एमां दाखल कर्યું છે इंटरनेट पर? केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा। यदि आप कार्य शब्द तलाश रहे हैं तो भारत कोश नामक पोर्टल को जरूर देखें। इसका उद्देश्य भारत के संबंध में हिंदी में एक समग्र ज्ञान कोश उपलब्ध कराना है। कि तमने हिंदी माहिती जोती हो तो कि भारत कोश नामक पोर्टल जरूर जुओ। एनी अंदर अपना भारत देश ने लगता जे हिंदी होय छे एमनी जानकारी मळी सके छे। इंटरनेट पर हिंदी का विश्वकोश भी उपलब्ध है। ये विश्वकोश हिंदी की सबसे पुरानी संस्थाओं में से एक नागरिक प्रचारणी सभा ने तैयार किया था। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा ने इसे इंटरनेट पर स्थापित कराने में सहायता की है। कैसे कहने इंटरनेट लेवा माटे तो अपना केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा ने मदद करी छे। हवे आ हतुं आपणे जे समय ज्यां शीख्या ए हतो विश्वकोश जोड़णी कोश के तमे जे पण समझो एना विशेनी माहिती। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों।